Hello, my dear student of class 12th science. Today in this video we will discuss the differentiability. In differentiability, as you know that in from the previous video also, whenever we check the differentiability, then we have to go for left hand derivative as well as the right hand derivative regarding to the given function at a certain point. So whenever we talk about the differentiability regarding to a function, we have basically a function and a point only in the question, and we have to check out the differentiability regarding to that function. Clear? So whenever we want to check out that function is not is differentiable or not differentiable, we have to go for left hand derivative and right hand derivative, which is simply as LHD and RHD. And on the screen you can also observe that in left hand derivative formula is limit h approaching to 0 value of the function at a minus h minus fa upon minus h, and in right hand derivative the formula is simply written as limit h approaching to 0 value of the function at a plus h minus fa upon h. We have to remember always that in left hand derivative and right hand derivative the basic difference is fa minus h and fa plus h. In left hand derivative we have to move to the left side of the point, so we have to use fa minus h, but in right hand derivative we move from the right way of the point, so we use fa plus h. In left hand derivative, in denominator you can also observe that we have minus h, but whenever we talk about the RHD, means right hand derivative, we have simply a h in denominator. In left hand derivative we have minus h in denominator, and in right hand derivative we have only positive h. So this is the explanation about the differentiability. And in your book, in exercise point 2 in this chapter 5.2, we have only single question of differentiability. So if you want to take a more knowledge or more critical situation you want to solve out, so you have to go for the RD and other side book. Clear? सो डिफरेंसिबिलिटी के लिए यदि आपको और क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो उसके लिए आपको आरडी में जाना पड़ेगा. आरडी में यदि आपके पास आरडी नहीं है तो जो साइड बुक है उनकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी. एंड ऑन द स्क्रीन इन दिस पेज वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन दैट प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1. बेसिकली ये मैं आपको दोबारा इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको जो है दोबारा से एक्सप्लेन करने चाहिए थे मुझे, क्योंकि उसका रीज़न था कि यदि आपको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं किए जाएंगे क्वेश्चन तो आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे. ठीक है. सो इन दिस वीडियो वी हैव द मोर एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग टू दीज क्वेश्चंस. तो चलिए फटाफट इनको डिस्कस कर लेते हैं अभी. द फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1. So you can observe that the value of modulus function becomes 0 at x equals to 1. इस मॉडुलस फंक्शन की जो वैल्यू 0 बन रही है वो बन रही है x इक्वल्स टू 1 पर. ठीक है, आप देख भी सकते हैं. और तो इसलिए हमें ये मॉडुलस फंक्शन ओपन करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन दिस मॉडुलस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1. In left hand side of 1 and in right hand side of the 1. So whenever x is less than 1, take a point, suppose x equals to minus 1, x equals to minus 2, because these values are less than 1. We have to take a single value which is less than 1. We can take minus 2, minus 3, minus 4 and so on. Simply we want to check out the
what will be the value of x minus 1 whenever we move in the direction of negative side. क्लियर? जब हम 1 से कम जाएंगे तो उस वक्त मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन लिखा है x माइनस 1 उसकी वैल्यू क्या होगी. सिंपली ये हमें ऑब्जर्व करना है, ये हम चेक करना चाह रहे हैं कि मॉडुलस की जो अंदर की वैल्यू है वो क्या होगी उस वक्त. तो जब हम 1 से कम की तरफ जाएंगे, मीन्स -1 -2 -3 इस तरह से, तो जो मॉडुलस के अंदर x माइनस 1 है ये ऑलवेज निगेटिव रहेगा. आप रख के देख लीजिए x के प्लेस पर -1 -2 -3 -4 इस तरह से. तो मॉडुलस के जो अंदर की वैल्यू है x माइनस 1 ये हमेशा निगेटिव रहेगी. और जब मॉडुलस के अंदर की वैल्यू निगेटिव रहती है तो मॉडुलस की ड्यूटी रहती है कि उसको पॉजिटिव करे. सो x माइनस 1 से पहले हमें एक माइनस वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. तो वही जब x 1 से लेस है तो वैल्यू बन गई माइनस ब्रैकेट x माइनस 1. इसको सॉल्व कीजिए तो मिलेगा 1 माइनस x. बट वेन एवर वी मूव इन पॉजिटिव साइड मीन्स x ग्रेटर देन 1. सो टेक अ पॉइंट एंड चेक आउट द वैल्यू ऑफ द मॉडुलस फंक्शन. अब जब x 1 से ज़्यादा रहेगा, सपोज 1.5 2 2.5 3 3.5 इस तरह से, तो जो मॉडुलस के अंदर x माइनस 1 है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. और जब मॉडुलस के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस x, वेन एवर x इज लेस दैन 0 देन इट विल बी माइनस x, एंड वेन एवर x इज ग्रेटर दैन 0 देन इट विल बी पॉजिटिव x. So this is x minus 1. So in this way we can divide the function into two branch, for less than 1, for greater than 1. But whenever we talk about x equals to 1, तो यहाँ पे इक्वल साइन आप ऊपर या नीचे दोनों ब्रांच में से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 पे दोनों ब्रांच में जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है. क्लियर? चलिए तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 1. तो जब हम यहाँ पे निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें. लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h. इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लिमिट. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ द पॉइंट a. क्लियर? पॉइंट जो a है फिलहाल वो यहाँ पे 1 है, जो कि हम 1 पे चेक कर रहे हैं. So limit h approaching to 0, value of the function at 1 minus h minus f1 upon minus h. So we have to find out the value of the function at 1 minus h at 1 and then replace that value in numerator. Clear? चलिए अब हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 1 माइनस एच पे. 1 माइनस एच बेसिकली दिस इज लेस देन 1, and whenever we have a less than 1 then function is 1 minus x. So in 1 minus x replace xy 1 minus h, and in the next line we have, you can also observe that limit h approaching to 0, 1 minus h minus 0 upon minus h. After solving this we have limit h approaching to 0 h upon minus h, and which is limit h approaching to 0 minus 1. And minus 1 is a constant function in which we have no h. So whenever h is approaching to 0 then we have a minus 1. So in this way left hand derivative is minus 1. Now we move on right hand derivative at the same point 1. So first of all we have to write down the formula of right hand derivative, which is limit h approaching to 0, value of the function at a plus h minus f a upon h. So replace a by 1 because we are checking the right hand derivative at x equals to 1, so value of a is 1. So limit h approaching to 0, value of the function at 1 plus h minus f1 upon h. Clear? Now calculate the value of the function at 1 plus h. 1 plus h basically is greater than 1, and whenever x is greater than 1 then function is x minus 1. So in the function x minus 1 replace this x by 1 plus h, and we have
limit h approaching to 0 h upon h. You can observe that the second line in the derivative is limit h approaching to 0 h upon h. क्लियर. सो h अपॉन h में यदि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो ये बनेगा 0.0 एंड 0.0 इज द indeterminate form and we doesn't have any value regarding to the 0.0. You also know this fact. So limit h approaching to 0 1 and 1 is a constant function in which we have a no variable, so the value of right hand derivative is also 1. So we can observe that the value of left hand derivative and right hand derivative is not equal to each other. So we have to write down that function is not differentiable at x equals to 1. फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, हमें इस बात को यहाँ पे लिखना पड़ेगा. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज. This is a fresh questions with a fresh page, and the first question is at the top of this page, that fx equals to 2x plus 3. Basically we have a two branch in this question. You can observe that first branch for x less than equals to 2 and second branch for x greater than 2. Clear. So whenever x is moving less than or equals to 2, then value of the function is 2x plus 3. But whenever x is moving away or moving to the right hand side of the 2, the value of the function is 2x minus 3. So simply we have to check out the differentiability of this function at the point 2. So first of all we have to go for left hand derivative, and then after this we have to go for right hand derivative at the same point 2. As you know that the formula of left hand derivative, which is limit h approaching to 0, value of the function at a minus h minus fa upon minus h. We have to first of all we have to write down this formula in the question. Clear. After this we have to replace the value of a by 2, and we have in the next limit h approaching to 0, value of the function at 2 minus h minus f2 upon minus h. Clear. So f2 minus h represents the value of the function whenever x is less than 2, because here you can observe that 2 minus h also we know that h is a very small positive value. But suppose h is 0.001, and whenever we subtract this value from 2, then this will be totally less than 2. So 2 minus h basically less than 2. जो 2 माइनस एच है अपने आप में ये वैल्यू लेस देन 2 है. और अब फंक्शन में जाइए, आप फंक्शन में देखिए, आप फर्स्ट ब्रांच तब है जब x अपने आप में लेस देन 2 है. So whenever x is less than 2, then value of the function is 2x plus 3. So in left hand derivative we want the value of the function at 2 minus h, and 2 minus h is less than 2. So in the function 2x plus 3, replace the x by 2 minus h. Clear. And for f2 represent the value of the function at 2. So check out in which branch x is equals to 2, and we can observe that in first branch x is equals to 2 and as well as less than 2. So in first branch replace this x by 2 and find the value of the function at 2. So in the second line of left hand derivative we have limit h approaching to 0 2 time of 2 minus h plus 3 minus 2 to the 4 plus 3, which is 7 upon minus h. And after this solving this step, we move on a next step in which we have a limit h approaching to 0 2, क्योंकि बाकी सब यहाँ पे कट गया और मेरे पास बचता है केवल 2. उसका रीज़न ये है कि जब आप यदि ऊपर देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए,
जितना पॉजिटिव पार्ट है उतना नेगेटिव पार्ट है, 7 और 7, 7 नेगेटिव 7 पॉजिटिव, तो मेरे पास बचेगा -2h अपॉन -h, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2h अपॉन h में h से h कट जाएगा, तो बचता है सिर्फ 2. सो लिमिट h अप्रोचिंग टू 2 इज 2. Now we have to move on right hand derivative and the same value 2. So first of all we have to write down the formula of right hand derivative, and which is limit h approaching to 0 value of the function at a plus h minus fa upon h. Here a is 2, so limit h approaching to 0 value of the function at 2 plus h minus f2 upon h. Value of the function at 2 plus h means whenever x is greater than 2, because 2 plus h is greater than 2. So we have to use here second branch of the function, means 2x minus 3 if x is greater than 2. So f2 plus h निकालने के लिए आप जाएंगे सेकंड ब्रांच पे, और सेकंड ब्रांच में जो फंक्शन की वैल्यू है 2x माइनस 3, उसमें आप x को रिप्लेस कर देंगे 2 प्लस एच से, तो ये बन जाएगा 2 टाइम ऑफ 2 प्लस एच माइनस 2 टू ज़ा 4 प्लस 3 अपॉन एच. क्लियर. सो यहाँ पे आप एच की वैल्यू रखेंगे 0, तो ये बनेगा मेरे पास में इनफाइनाइट. क्लियरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. क्लियर. We have to write down the last statement that function is not differentiable at 2. क्लियर. चलिए आगे. अब इसके बाद में ध्यान से देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन. एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 एंड एक्स इक्वल्स टू 5. सुनिए ध्यान से. ये जो क्वेश्चन दिया है आपको एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 और पॉइंट दिया है एक्स इक्वल्स टू 5. सबसे पहले तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले यूज़ करेंगे, और यूज़ करके आप फॉर्मूले तब जा करके बता पाएंगे भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है कि लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0, जो सबसे पहले आपको लिखना भी है और आपको याद भी रखना है कि एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट h approaching to 0 value of the function at 5 minus h minus f5 upon minus h. यहाँ पे मैंने a को रिप्लेस कर दिया है 5 से, क्योंकि हमें 5 पे चेक करना है कि 5 पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है अपने आप में. सो f5 माइनस h. अब देखो इस क्वेश्चन में फंक्शन की कोई ब्रांच नहीं है, फंक्शन अपने आप में सिंपल है, तो आप 5 से लेफ़्ट में जाएं, 5 से राइट में जाएं, मींस 5 माइनस एच की बात करें या 5 प्लस एच की बात करें, आप एल एच डी में जाएं या आर एच डी में जाएं, आपको सेम फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा. क्लियर. क्योंकि यहाँ पे फंक्शन अपने आप में अलग अलग नहीं दिया है, फंक्शन की एक ही ब्रांच है, उसी ब्रांच को आप लेफ़्ट में, उसी ब्रांच को आप राइट में यूज़ करेंगे. सो f5 माइनस एच माइनस f5 अपॉन माइनस एच. तो यहाँ पे सबसे पहले आप निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू 5 माइनस एच पर. तो जब आप निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू 5 माइनस एच पर, तो यहाँ पे आपको ध्यान एक बात का रखना है कि जो आपको एफ एक्स दिया है वो दिया है x माइनस 5. तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 में आप x को रिप्लेस कर दीजिए 5 माइनस एच से. ठीक है. तो जब आप रिप्लेस कर देंगे एफ एक्स में x को 5 माइनस एच से, तो रिप्लेस करने के बाद वैल्यू जो आएगी आप देख रही हैं नेक्स्ट लाइन में, वो आएगी 5 माइनस एच माइनस 5, क्योंकि हमने सिर्फ फंक्शन में x को रिप्लेस किया है 5 माइनस एच से. ठीक है. तो फंक्शन की वैल्यू 5 माइनस एच पर बन जाएगी 5 माइनस एच माइनस 5. और रही बात f5 की, तो f5 के लिए आप क्या करेंगे, सुनो ध्यान से. ये जो f5 है, f5 का मतलब है कि आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 5 पर, 0.5 पर. तो आप क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 में x को रिप्लेस कर देंगे 5 से. सो 5 माइनस 5 मीन्स 0. सो फंक्शन की वैल्यू 5 पर आ जाएगी 0. लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1 इक्वल्स टू
0. Now after this we will move on RHD, means right hand derivative. So first of all, write down the formula, and formula is limit h approaching to 0 value of the function at a plus h minus fa upon h equals to limit h approaching to 0 value of the function at 5 plus h minus f5. बेसिकली 5 प्लस h, इसका मतलब समझिए आप, 5 plus h means greater than 5. But here in this question we have a single branch, and this branch we will use in left hand derivative as well as right hand derivative in both. So value of the function at 5 plus h minus f5 upon h. Value of the function at 5 plus h will be 5 plus h minus 5 minus value of the function at 5, it will be 0. क्योंकि जब आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 5 पर, तो जैसे ही फंक्शन में आप रिप्लेस करेंगे x को 5 से, तो बनेगा 5 minus 5 means 0. So limit h approaching to 0 1 equals to 1. So clearly we can see that, or we can observe that the value of left hand derivative and right hand derivative is different. So this function is not differentiable at x equals to 5. ये जो अपने आप में फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है. क्लियर? तो इस तरह से मैंने ये आपके पास में भी ये 2 पेज शेयर किए हैं. आपको सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है? रटना नहीं है कुछ भी आपको मैथमेटिक्स में, रटिए मत. सिर्फ अपने माइंड का जो लिमिट है उसको आप एक्सटेंड कीजिए. डिफरेंट क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, डिफरेंट बुक्स को ट्राई कीजिए टू एनहांस द नॉलेज. क्लियर? सो एनसीईआरटी बेसिकली it is not sufficient for the knowledge, as you know very well. Clear? So if you want to take a knowledge or more knowledge, you have to go for side book also, unsold also, RD Sharma also. आपको जाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी में अपन आपको बताया अभी डिफरेंशिबिलिटी का सिर्फ यहाँ पे 5.2 में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंशिबिलिटी का 1 या 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, और डिफरेंशिबिलिटी जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आता है. अब RD शर्मा में क्वेश्चन दिए हुए हैं डिफरेंशिबिलिटी के, तो प्रैक्टिस के लिए आप वहाँ पे जाएंगे. बाकी मैं आपको वो क्वेश्चंस एक पेज पे लिख करके उसके PDF भी सेंड कर दूँगा, टेंशन ना लें. लेकिन मेरा आपको सिर्फ यही कहने का पर्पज़ है कि भाई आपको अदर जो साइड बुक्स है उनमें जाना चाहिए. ऐसा ना हो कि आप एनसीईआरटी करके खुश हो जाएं कि भाई हमने तो इस चैप्टर फिनिश कर लिया, लेकिन जब क्वेश्चन आपको RD से दिया जाए तब उसको आप सोल्व ना कर पाए. तो ऐसा कोई सीन क्रिएट ना हो अपने आप में, इससे बचें. और जो साइड बुक है उनकी आप हेल्प लेते रहें नॉलेज के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे. डिफरेंट सिचुएशन में आप अपने माइंड की जो उसकी लिमिट है उसको आप कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चन को लेके चलते हैं, ये आप तब सीख पाएंगे जब आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे. सुनना, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं होती है. जब तक आपके पास में 10-15 के अराउंड क्वेश्चन ना हो एक्सरसाइज में, तो तब तक करने का कोई फ़ायदा नहीं है उसको. क्लियर? सो मैंने अभी आपके पास में ये डिफरेंशिबिलिटी का जो कंसेप्ट था वो क्लियर कर दिया है कि भाई डिफरेंशिबिलिटी क्या होता है, कैसे उसको चेक करते हैं. इससे पहले आपने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी में और डिफरेंशिबिलिटी में एक फ़र्क ये है कि भाई वहाँ पे आप निकालते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट ऑल्सो. And whenever LHL and RHL and value of the function at that point is equal to each other, then we have to write down that the given function is totally continuous at this point. But whenever we talk about the differentiability, in differentiability we have to check out only left hand derivative then as well as right hand derivative. And if the value of both these derivative, right hand derivative and left hand derivative, LHD and RHD,
if the value of these are equal to each other, then we have to write down that the given function at the given point is totally differentiable, वो अपने आप में differentiable function है। और इस तरह से हम एक फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को चेक करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए दोनों के अलग अलग फार्मूले हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए अलग फार्मूला है, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए अलग फार्मूला है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फार्मूला है कि भाई लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में फार्मूला आता है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में ऊपर की तरफ जो आप लिखते हैं इन द न्यूमरेटर, तो वहाँ पे लिखना पड़ता है आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। बट वेन एवर वी टॉक अबाउट द आर एस डी, then we have to write down the formula limit h approaching to zero, value of the function at a plus h minus f a upon h. Left hand derivative and right hand derivative, the basic difference in denominator: in left hand derivative we have minus h in denominator, but in right hand derivative in denominator we have only positive h. सो इस तरह से आप किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को चेक करते हैं। आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि ईच एंड एवरी फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूअस, मान लीजिए कोई फंक्शन है आपके पास में, वो कंटिन्यूअस है, तो वो डिफरेंशियबल हो भी सकता है और नहीं भी, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि एक फंक्शन अपने आप में डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूअस ज़रूर होगा। जैसा आपने पढ़ा था लास्ट ईयर, each and every function is a relation, but every relation is not a function. You know very well this fact from the last year class 11th chapter number 2, relation function. Clear? सुनना है कुछ? Each and every function is a relation, but every relation is not a function. Clear? सो उसी तरह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं ईच एंड एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशियबल। जो फंक्शन अपने आप में डिफरेंशियबल है वो कंटिन्यूअस ज़रूर होता है, लेकिन यदि कोई फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशियबल हो भी सकता है और नहीं भी, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आईआईटी होता है, आईआईटी में आपके पास 2 एग्ज़ाम में प्री और मेन, मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड। तो जिसने प्री पास किया वो तो मेन में जाएगा, अब भले ही उससे मेन पास हो या ना हो। लेकिन जिस बच्चे ने मेन एग्ज़ाम पास कर लिया है तो ये क्लियरली शो हो रहा है कि हाँ भाई इसने प्री पास किया होगा। तो प्री यहाँ पे कंटिन्यूटी है और मेन यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो यदि कोई फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूटी का टेस्ट पास कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशियबल भी होगा। लेकिन जिसने अपना सेकंड टेस्ट डिफरेंशियबिलिटी का टेस्ट पास कर लिया है तो क्लियर है कि वो अपने आप में कंटिन्यूअस ऑलरेडी है। ये बात आप याद रखें। क्लियर? तो चलिए इसके बारे में बाकी क्वेश्चन के साथ में मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और बेसिकली ये आपकी वीडियो भी बना रहे हैं हम जून के रिगार्डिंग। दिस इज़ फॉर 2 जून। 1 जून की वीडियो जा चुकी है, 2 जून की वीडियो आपके पास में ये है और ये आप रिवाइज़ करेंगे। ये आपको हम अभी यहाँ पे जो है लिंक भले ही सेंड कर रहे हैं, लेकिन इनको आप जून में पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है किसी बच्चे को तो वो मुझसे पूछ सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन करे, व्हाट्सएप करे, अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहिए। एज अ स्टूडेंट इट्स योर ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। सो डू योर ड्यूटीज़, बी ऑनेस्ट। क्लियर? चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।